Law of gravitation. Law of gravitation states that every body attracts each and every other body with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between the two masses. Say suppose I've got two masses m1 and m2. Okay, there are two bodies, body A and body B, with mass m1 and mass m2. Then the force between these two masses will be directly proportional to the product of the masses. Okay, अगर मैं इन masses को multiply करूंगा तो जो force होगी इन दोनों masses के बीच में, इन दोनों masses के product के directly proportional होगी. yes नव्या. तो हमारे पास दो masses हैं m1 m2. तो जो फोर्स है इनके बीच में, ये फोर्स इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. विच मीन्स कि अगर कोई भी मास इन दोनों में से बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी. अगर कोई भी मास मैं बढ़ा दूंगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स बढ़ जाएगी. यानी ये मासेस जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी. ओके, तो जितना बड़ा मास होगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. जितना कम मास होगा उतनी कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. ठीक है, इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं अर्थ और मून का. मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मुकाबले 1/6 है. ठीक है, कारण क्या है? मून का मास अर्थ के मास से बहुत कम है. इस वजह से मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 होती है. इट इज जस्ट 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज देयर ऑन द अर्थ, ओनली बिकॉज कि मास के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन द मास. सेकेंड थिंग इज दैट द फोर्स बिटवीन these two masses will be inversely proportional to the square of distance. So it will be inversely proportional to the square of distance between the masses. मतलब अगर इन masses का मैं सेंटर ले लूं और इन सेंटर से इनका बीच का डिस्टेंस लूं और अगर उस डिस्टेंस को मैं r मानूं, if I take the centers of these two masses and take a distance between the centers of these two masses and take that distance as r, अगर उस डिस्टेंस को मैं r लूं तो जो फोर्स होगी वो इस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. मतलब क्या कि अगर डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी. इफ वन थिंग इज इंक्रीजिंग द अदर थिंग डिक्रीजेस. Which means if the distance is going to increase, if I take these masses away from each other, अगर ये masses को मैं एक दूसरे से दूर लेके जाऊंगा, if I take these masses away from each other, then what will I find? I will find that the force between these masses is reducing. It is becoming less. तो ये force कम हो रही है और force किस amount से कम होगी? It will become less in proportionality, inverse proportionality to the square of the distance. यानी अगर मैं इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दूं, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो इनके बीच का फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा. डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी. इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ये मतलब होता है. और स्क्वायर की प्रोपोर्शन से ये कम होगा. It will become less with the proportion of square, which means if the distance becomes double, the force is going to become less by 4 times. Let us see how. Say suppose the distance is r and I double the distance. The new distance will be 2r. Okay, new distance will be 2r. Therefore, the force in this case will become the square of 2r. The square of 2r. Therefore, force will become 1/4. 2 2s are 4 into r square. So, force will become 1/4 of the original force. जो पहले फोर्स थी इन दोनों बॉडीज के बीच में, अब जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगी. Based on this concept,
if I tell you that I make the distance between these two bodies by 3 times, अगर मैं इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा देता हूं, तो फोर्स पे क्या इंपैक्ट होगा? हु विल टेल मी? ट्राई योर आंसर्स, रेज योर हैंड्स, दोज हु वांट टू टेल मी. Question is that if I increase the distance between these two bodies by 3 times, what effect is it going to have on the force between these two bodies, the gravitational force between these two bodies? What effect it is going to have? So 1 by 9. It will become 1 by 9. Absolutely correct. The force will become 1/9 of the original force. Okay. Say suppose I make the distance between them 1/4. I reduce the distance between them by 1/4, or make the distance between them 1/4 of the original. 4 times कम कर दूं अगर डिस्टेंस के बीच का, then how it is going to impact the gravitational force between these two bodies? So the force will increase by 4 times. The force will increase by 4 times. Okay. Anybody else who wants to say something? Yes, Virat? Force will increase by 2 times. The force will increase by 2 times. Okay. Anybody else? No. Okay. Let me see. Let us see how it is going to impact. Okay. Let us see how it is going to impact. Who is correct? Who is wrong? Let us see. ठीक है, देखते हैं कौन सही है कौन गलत है. 2 बॉडीज है हमारे पास, इनके बीच का डिस्टेंस था r. इनके बीच का डिस्टेंस मैंने 4 टाइम्स कम कर दिया. ठीक है, इनको पास ले आया, 4 टाइम्स कम कर दिया, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया r/4. F इज इक्वल टू 1/r². ये ओरिजिनल सिचुएशन थी. अब जब नई सिचुएशन आई है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r/4 का स्क्वायर. सो F इज प्रोपोर्शनल 1/r²/16. अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे. F इज प्रोपोर्शनल 1/r² into 16. So the force become 16 times. The force between the two becomes 16 times. Did you see? यहां पर प्ले क्या कर रहा है? यहां पे सारा खेल जो है स्क्वायर का है. ये स्क्वायर का खेल है. जो भी व्यक्ति आप लोगों में से स्क्वायर को भूल जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करना भूल जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी गलती हो जाएगी. माइंड इट. इस चीज को ध्यान में रखना है. गॉट इट? Okay, sir. सारा खेल स्क्वायर का है. देखा आपने? विराट डबल कैसे बोल दिया? आपने 4 टाइम्स कैसे बोल दिया? ये स्क्वायर को भूल गए क्या? कोई डबल बोल रहा है, कोई 4 टाइम्स बोल रहा है. आप इसको पुट करिए केसेस बनाकर. केस 1, केस 2, पुट इट. आप इसको पुट करके देखिए. यू जस्ट पुट दिस एंड वंस यू पुट इट, then you will come to know what is happening. So clearly you can say, see this, that it is becoming 16 times. Have I made myself clear on this thing? Yes, sir. Great, great, great. देखो अब इसके फॉर्मूला की, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला की डेरिवेशन पे चलते हैं. याद है मैंने लास्ट क्लास में कराई थी ये डेरिवेशन. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. आती है? Yes, sir. कैसे डिराइव किया था फॉर्मूला हमने? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2. F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. कंबाइन करेंगे F m1 m2 upon r². We remove the sign of proportionality, so we get F is equal to G m1 m2 upon r². Yes. क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? G as the gravitational constant जो आपने बताया. Yeah, we will take G as gravitational constant. Here G is the
gravitational constant. Okay, G is the gravitational. मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स के साथ। So अब अगर G की वैल्यू चाहिए, इफ आई वांट टू हैव वैल्यू ऑफ G, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। एंड G की वैल्यू क्या दी थी मेरे को, मैंने आपको याद है आपको, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ G? आई गिव यू 6.6 टू 10 टू द पावर -11। फिर इसका यूनिट भी हमने डिराइव किया था। देखो यूनिट कैसे डिराइव करेंगे, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और स्क्वायर लगा हुआ है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास का यूनिट होता है केजी, दूसरे मास का भी यूनिट केजी है, तो केजी इंटू केजी विल बी केजी स्क्वायर, सो इट बिकम्स केजी स्क्वायर। ओके, गॉट इट? दिस इज हाउ वी डिराइव। So 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square upon kg square. We know that if we have two bodies, okay, with mass m1 and m2, then these bodies will attract each other, and the force with which they are attracting each other is called as gravitational force. And the gravitational force is inversely proportional to the distance between the bodies. Now, I give you this question that, say suppose there are two bodies and the distance between them is given to us, say it is given to us as r, and if I make the distance between the bodies half, then how it is going to impact the gravitational force? यानी मेरे पास दो बॉडीज हैं, body with mass m1 and body with mass m2, and the distance between them, their centers is r. This is the case I have given. Now I'm saying that I am making the distance between them half of the original. So the distance between them is made to be half. So distance, new distance in this case will be half of the original one. पहले डिस्टेंस कितना था, r था, अब नया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज r/2 हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस r/2 हो गया। तो पहले केस में फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, विच मीन्स स्क्वायर ऑफ r. In the second case, the force will be inversely proportional to the square of r/2. r/2 का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है। इस केस में डिस्टेंस r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर हो गया। अब r/2 का अगर स्क्वायर करा मैंने, तो f, तो ये 1/r²/4 हो जाएगा। ये समझ में आ गया कैसे r²/4 कैसे आया? अगर इस पूरे का, पूरी फ्रैक्शन का स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होता है। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर जो है वो r का स्क्वायर r² ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब 1/r²/4 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि 1 है ना, 1 रेसिप्रोकल होता है। सो ये हो जाएगा f प्रोपोर्शनल 4/r², विच मीन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f प्रोपोर्शनल f 1/r² इंटू 4। तो ओरिजिनल के कितने टाइम्स हो गया? ये तो हो गई ओरिजिनल, ये ओरिजिनल फोर्स है, ये देखो ओरिजिनल, यस, दिस इज द ओरिजिनल फोर्स। और उसके कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया। सो सिंपल, सो सिंपल। एक और कर लेते हैं, लेट अस डू वन मोर। ठीक है, युवान आप ही ट्राई करो इसको पहले, यू ओनली ट्राई दिस, ओके? If I make the distance between the two bodies 1/3, how it is going to impact the gravitational force between the bodies? The gravitational force between the bodies. How it is going to impact the gravitational force between the bodies?
if I make the distance between the bodies 1/3, I reduce it to the third of the original distance. So the distance between the two bodies m1 and m2 is r. This is case 1. So the force in this case, the gravitational force between these two bodies in this case will be r square. Now if I make the distance between them 1/3 of the original, which means the distance between them will become r by 3. The distance between them will become r by 3. Now let us see what is going to happen. This is case 2. So F proportional 1 by r by 3 का स्क्वायर. अभी मैंने बोला था कि जब ये स्क्वायर लगाते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर जाएगा, विच मीन्स F प्रोपोर्शनल 1 by r स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9. अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो F प्रोपोर्शनल 9 अपॉन r स्क्वायर. 9 को कॉमन ले लेंगे तो F प्रोपोर्शनल 1 by r स्क्वायर इंटू 9. अगर ये देखेंगे तो ये ओरिजिनल फोर्स के बराबर है. ओरिजिनल फोर्स के कितने टाइम्स हो गया? 9 टाइम्स हो गया.